हम्म। Yes, thank you. Yeah, you can continue the session. किसी को कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग फंक्शन? कल जो फंक्शन हमने सीखा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? कैन यू सी माय स्क्रीन? No, ma'am. नाउ Yes, ma'am. so yesterday we learned a lot of things. We learned about list comprehension, we learned about modules, we learned about um, functions, we learned about how to handle files, right? Now coming to functions, I showed you one example. We'll show you a few more. But apart from that, for that one example, do you have any query, any question, any confusion, anything? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना? दैट्स व्हाई यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन. ओके, टास्क किसने किया? Anyone completed the task? You need to extract the second letter from each of the words in a sentence with the help of a function. Anyone did that? ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात बोल दूं. टुडे विल एंड बाय 9. ओके, ये जो आधा घंटे का आधा घंटे का जो रह गया, विल टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन. इज दैट फाइन? Okay, ma'am. ओके. ओके, चलो. टुडे विल लर्न वन न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड oops. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? एनीवन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ oops? Object-oriented programming. Okay, so in this oops we have two main concepts. One is class, another one is object. Okay, now just because it's a completely new concept to you, so I need to explain few things first and then we'll jump into that topic and we'll show how to create the code. We'll come to that later. So before starting we need to understand what is oops, what is this object, what is this class. So let's take an example of a house. Okay, now you have a blueprint of a house, like how the house will look like, the structure, how it will look like. You have a blueprint of that. So you imagine you are going to build a house and you have created a blueprint of it. Okay, now in that case, when creating the blueprint or when you are designing that blueprint, that building does not exist in real life, right? That is there in your brain, that is there in the paper. So that house doesn't exist. Now from that blueprint, when you are building one house, okay, that is called object, and the blueprint, that is called the class. Okay, so when you have something which is there in your brain, which doesn't exist in real time, and just you have a blueprint of it, like how the house will look like, that is the class. Okay, so the blueprint is the class. Now from that blueprint, when I'm building one house, now with that same blueprint, Kiran can build one house, and with that same blueprint, Pratik can build another one house. With that same blueprint, Rahul can create another one house, right? So with one class we can create multiple objects. Are you getting the point? So you have one blueprint of a house, that is your class. Now that doesn't exist in real time because that is just a blueprint. You have just created one blueprint where you have added all the features of the house which you want to be there in that house, to present in that house. You have created a blueprint with the help of your thoughts, right? Now if I'm checking your blueprint, I can understand that, okay, so if this is the blueprint, I know how your house will look like. Okay, now with the same blueprint we can create multiple houses. Similarly, with one class we can create multiple objects. Now I'm giving you another one example. Let's say uh, uh, another one example. Let's say I have um I have one model of a human being. Okay. Now from that human being, we have created 3 4 humans. Okay. They look different. Okay. Now if you check your class, you can get an idea how your objects will look like. Okay. Similarly, we all know about creating demo vehicles. Demo, let's say your cars. Like before launching any brand new car, the company create a demo, right? So that demo before creation, when we are drawing that on paper, when it's there in my brain and on the paper only, that is my class. When I create or when I build one demo, that time it's there in real life. So that is my object one. Are you getting my example? No need to talk about it. हिंदी में, मेरा तो हिंदी बहुत खराब है राहुल. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग,
मान लो तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट है, घर का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपने ड्राइंग की है कि आपका घर देखने में कैसा होगा, ठीक है? तो आप जब ड्राइंग कर रहे हो या किसी इंजीनियर से करवा रहे हो, तो वो घर तो एक्जिस्ट नहीं करता, राइट? वो आपके दिमाग में है और पेपर में है सिर्फ। तो वो जो ब्लूप्रिंट आपने बनवाया है, वो दैट दैट ब्लूप्रिंट इज़ टेलिंग यू कि आपका घर देखने में कैसा होगा, राइट? एग्री? तो वो ब्लूप्रिंट जिसमें आपका घर ड्राइंग किया हुआ है कि आपका घर में क्या-क्या फीचर्स होगा, देखने में कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, ये सारे आपने मैप के हिसाब से वहाँ पे लिखा है एंड आप एक इमेज क्रिएट की है। तो वो मेरा क्लास है। अभी वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब जब एक घर बनवाओगे, मान लो मुंबई में एक जगह में आपने एक घर बनवाया, वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, जो देखने में सेम टू सेम है। फिर आप दूसरी जगह जाके और एक घर बनवाए। तो यू हैव क्रिएटेड और यू हैव बिल्ट 2 हाउसेस वो ब्लूप्रिंट से। तो अगर मैं ब्लूप्रिंट को क्लास मान के चलूँ, तो ये जो फर्स्ट आपने घर बनवाया है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट 1 और जो दूसरी जगह में आपने बनवाया फिर से, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट 2। अभी आप 3, 4, 5, 6 जितने घर बनवाओ, दोज़ आर योर ऑब्जेक्ट 3, 4, 5, 6। तो क्लास हमें बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट देखने में कैसा होगा? व्हाट आर द फीचर्स विल बी देयर इन माय हाउस और इन माय ऑब्जेक्ट। वो हमें क्लास देखने से पता चलता है। अभी क्लास बनाने के बाद वहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। गॉट इट राहुल? आई थिंक हम कोड लिखने के बाद आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा। राहुल आपको समझ में आया? वॉइस सॉरी? हेलो। हुँ, ओके। नेक्स्ट। मैम आपकी हिंदी तो कितनी सही है, आपको ऐसा करके आपको हिंदी नहीं आता। अरे अगर कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दूँ तो आप लोग हँसोगे ना, इसलिए मैं कोई नहीं। बात नहीं मैम, हम ओके, सी दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर क्लास, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखा है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है? फिर हम अच्छे से कोड करेंगे इसको कोलैब में। बट बिफोर दैट आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ इट लुक्स लाइक। देखो क्लास फर्स्ट याद है ना हम वो फंक्शन के टाइम कैसे डेफ से क्रिएट किए थे? फंक्शन डेफ एंड देन द फंक्शन नेम एंड विदिन पैरेंथेसिस वी मेंशन आवर आर्गुमेंट और आवर इनपुट, राइट? नाउ हियर व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी क्लास एंड आपका ऑब्जेक्ट हम क्लास से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विथ क्लास। जैसे डेफ वहाँ पे हमारा कीवर्ड था, यहाँ पे क्लास इज़ आवर कीवर्ड। जैसे व्हेन वी आर राइटिंग एनी इफ स्टेटमेंट वी स्टार्ट विथ इफ, राइट? जब हम लूप्स लिखते हैं वी स्टार्ट विथ दैट लूप नेम फॉर और व्हाइल, राइट? हियर आल्सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास वी स्टार्ट विथ क्लास एंड आफ्टर दैट वी क्रिएट आवर जो भी हमारा उसके अंदर जो भी रहेगा those things we mentioned will come to that later but as of now we start with class. Now after mentioning class we need to give a name to our class. Whenever you are creating आप जब भी कुछ क्लास क्रिएट कर रहे हो सब क्लास का एक-एक नाम हमें देना पड़ता है जस्ट लाइक दैट फंक्शन। फंक्शन में भी डेफ लिखने के बाद हमें एक फंक्शन को नाम देना पड़ता है, राइट? यहाँ पे भी क्लास के बाद हमें एक नाम देना पड़ेगा। ओके, व्हाट इट्स सेइंग अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ये तो हमें समझ में आ गया, राइट? An accumulation of functions and data members that share the same scope and gets instantiated when the object is created. I need to show you that. This is how it looks like. तो आपको कंफ्यूजन होगा तो इसलिए आई एम टेकिंग अ फ्रेश पेज। Okay. Now, what I have mentioned that we start with class, right? Now, after writing class, we need to give a name to our class. Let's say I'm taking a simple name dog. Okay. Now, after that, we need to create functions under that. Now, the question is, ये function क्या है? Functions is like this. Meaning, whenever you are creating any class, आप जब भी ऐसा कुछ class create कर रहे हो, you need to have few attributes, few behavior, few functions within that. ठीक है? मान लो, if I'm creating a class called dog, ठीक है? Now, while creating the class, you need to have few attributes. Now, what is the attribute of class dog? If you have a name, if your dog has a name, that comes under attribute. Okay, मान लो if human is a class, then let's say I am one object of class human. You are another one object of class human. Rahul is another one object of class human. Pratik is another one object of class human. Okay. Now, when I'm creating class, what is our goal? Class is nothing but a blueprint. So it will talk about the basic things we all have. Okay. Think properly that अगर आपके पास एक क्लास है, क्लास का काम क्या है? It will talk about us. कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास बेसिक क्या-क्या चीज़ है, इट विल टॉक अबाउट दैट, राइट? अभी ये क्लास ह्यूमन क्रिएट करने के बाद हम सब एक-एक करके एज़ ऑब्जेक्ट उसके अंदर घुसेंगे, धीरे-धीरे करके, राइट? हमारे पास एक क्लास है व्हिच इज़ टॉकिंग अबाउट अस, व्हिच इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल ह्यूमन, सो इट विल टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स ह्यूमन हैज़. Now, in that case, if I am registering myself as an object to that human class, so
I need to give some basic details to that human class. तो आप जब ये class create कर रहे हो, you need to mention few attributes, you need to mention few functions. Now what is attribute? Attribute meaning you need to give a name, age, or मान लो here I'm giving, because my class name is dog, so I'm taking name of the dog, I'm taking age of the dog, let's say, or I'm taking the color of the dog. Okay, you can take all three, you can take any two, okay, whatever the requirement is. So here I'm giving 2 or 3 attributes. Now after that, what is this function then? What are the things your dog can do? Your dog can walk, your dog can bark, your dog can dance, your dog can run. Okay, all these are functions. Okay, these things my dog can perform. So these comes under the functions. So नाम, color and age. ये तो functions नहीं है, ये तो कोई activity नहीं है, right? So these comes under attributes. And whatever activity your dog can perform, those comes under your functions. So let's say if we are considering that human class, तो मेरा नाम, color, age, फिर where I'm staying, these comes under my let's say my city, these comes under my attributes. Okay, and what are the skills I have, what are the things I can do, those comes under my function. Okay, so similarly if I go back here, we can, so all of you are like, did you have your laptop with you? guys try करो कि लैपटॉप लेके बैठो सेशन में, यही ना, ये जो 1 घंटे आप स्पेंड कर रहे हो यहाँ पे, इट विल क्लियर अ लॉट ऑफ योर डाउट. अब बैठ के ही इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एनीवेज आपके पास है ही लैपटॉप, तो ट्राई करो कि वो लेके ही बैठो, इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग फ्रॉम योर मोबाइल, ट्राई टू जॉइन फ्रॉम योर लैपटॉप, या मोबाइल से जॉइन करके भी आप लैपटॉप सामने खुला रख सकते हो ना. Okay, now let's say class dog, and here I'm going to create one, let's say two attributes. Now while creating attributes, okay, attribute नहीं create करके, first I'm going to show you how to create one function under the class. Okay, that will be easier. तो मान लो my dog can talk, my बस my dog can talk, only talking my dog can talk. So the same way, the way we create our function, but notice one thing, here I'm creating this def under this class. Why I'm saying under? Because here you can see this indentation. This indentation talks about that that this function I'm creating under this class. Okay, now def print, sorry, def, I need to give a name to my function, that is, let's say, talk. Okay, now whenever we are creating this function, we always need to mention self. Why? What is the self? This self means later on, अभी जो हम class create कर रहे हैं, this class doesn't exist in real time. This I'm talking about the structure only. Okay, when we will create object, then it will consume some memory. Okay, then it will take some space. So for that, whatever object I'm going to create, that object will pass here. Self meaning, if I am considering myself, here self meaning Shruti. If Rahul is my object, is second object, then Rahul is this, like, will come here. If Kalpesh is third object, then Kalpesh will come here. So self meaning whatever object I'm going to create, that object itself. Okay, so whenever we are going to create any function under any class, we have to mention this self. Okay. Now if you call this function, what this function will do? Why we create function? Yesterday we learned that whenever we are creating any function, we call that function so that it can do some task. Agree? Yes or no? हम फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम जब इसको कॉल करें, इट कैन डू सम टास्क, इट कैन परफॉर्म सम टास्क. नहीं तो व्हाई वी विल कॉल? Here also when you are creating any function, we are creating so that it can do some task, right? So under this talk function, what task it will do? If I'm calling this function, it will do some task, that is, you can print something else. I'm printing this, you can print something else. Okay? Now, this is how we create a function. Coming to attributes, name, color, age, how to mention those things. For that, I need to show you another one slide. That is called init function. Whenever we create any function, see, let's consider human being is a class. Male and female inherited from class human being. Okay, we have two. So under class, we have two more class. One is male, one is female. Okay. Okay, I think we can discuss this later. Before that, I need to show you what is init function. Okay, first you tell me class and object का जो concept है. What is class and what is object? पूरा नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया? ये class क्या है and object क्या है? पूरा तो करने के बाद समझ में आया. थोड़ा बहुत आया समझ में? आप लोग chat use करो. अगर नहीं बोलना है तो. Yes, ma'am. Very good. ठीक है. Now, whenever we create any class, and under that, let's say I'm creating attributes, function 1, function 2. Okay. Now after that, we create object 1, object 2. Okay. Now after creating object, you can call your functions.
Okay, after creating object, you can call any of the function. Let's say function 1, if you call, it will print that woof or whatever text you want to print, it will print that. And if you are calling this function, okay, let's say this function I have mentioned print yes. So if you are calling this function, it will print yes. Now, coming to this, these two are very disciplined. Meaning, if you call them, it will work. If you don't call, it will not work. Okay. But coming to this attribute, here, if I'm mentioning that function with the help of init function, init method. Init method is a magic method. Meaning, if you keep this init method in your class, when you are creating the object, if you don't call this, still it will call itself automatically. मीनिंग क्लास के अंदर अगर आपने इनिट को रखा तो जब आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो अंडर दिस क्लास ये इनिट खुद को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है आप बुलाओ या ना बुलाओ डजंट मैटर इट विल कॉल इटसेल्फ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट विल कॉल इटसेल्फ जैसे ये मुझे कॉल करना पड़ेगा फिर काम करेगा ये मुझे कॉल करना पड़ेगा फिर काम करेगा बट कमिंग टू इनिट इट इज अ मैजिक मेथड इट विल कॉल इटसेल्फ ऑटोमेटिकली ओके ये अगर आपने इसका इसके अंदर जो कुछ भी है मान लो इनिट के अंदर मेरे पास नेम एज एंड कलर है तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस क्लास के अंदर वहां पे आपको ये नेम एज एंड कलर मेंशन करना ही पड़ेगा एल्स इट विल नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट तो मान लो मेरा एक बैंक है जहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट की है वहाँ पे नेम अकाउंट नंबर एंड इनिशियल बैलेंस दीज आर माय एट्रीब्यूट्स तो अगर आप यहाँ पे आके कोई अकाउंट खोलोगे तो आपको ये तीन चीज मेंशन करना ही पड़ेगा एल्स यू वोंट बी एबल टू ओपन एन अकाउंट गॉट इट Yes, ma'am. अभी चलो देखते हैं now here we have created one function now let's create that init method def how to create init underscore underscore init underscore underscore okay now let's go for self I mentioned that you have to mention self every time you are creating now here I'm giving let's say name age and let's say color okay now self dot name equal to name okay after you mention all the attributes you have to create this so that every time we are creating one object you have to mention separately the name of the object age and color okay this is how we create attribute self dot age equal to age self dot color equal to color okay now let's say along with all this I'm creating another one function is my function 2 def the function name I'm giving print all attributes meaning this function if you call this function it will print all of these okay now what I need to give self now print instead of creating something randomly let's create a meaningful sentence okay you can just take self dot name comma self dot age self dot color and print you can do that okay comma comma देके आप ये तीनों का नाम लिख सकते हो but what I'm going to do I'm going to create one meaningful sentence so what I'm going to do let's say the dog name is I'm creating one placeholder okay अभी ये placeholder में क्या डालना है we'll tell that later okay क्या डालेंगे हम ये placeholder के लिए self dot name ठीक है so the dog name is dash and the age is dash okay now ये दोनों होल्डर के लिए मुझे दो चीज डालना है फर्स्ट होल्डर के लिए सेल्फ डॉट नेम सेकंड होल्डर के लिए सेल्फ डॉट ये अब अगर आपको कलर भी डालना है तो यू कैन ऐड दैट द एज इज डैश एंड द कलर इज डैश ओके अगर आपको डालना है तो नेक्स्ट हाउ टू ऐड दोस टू थिंग्स डॉट फॉर्मेट ओके अभी डॉट फॉर्मेट लिखने के बाद यू कैन मेंशन दैट ये फर्स्ट होल्डर में आप क्या डालना चाहते हो सेकंड होल्डर में आपको क्या डालना है तो फर्स्ट होल्डर में आई वांट टू पुट सेल्फ डॉट नेम ओके एंड फॉर द नेक्स्ट होल्डर आई वांट टू पुट सेल्फ डॉट एज हेलो मैम आवाज़ नहीं आ रही है हाँ मैं म्यूट में थी और मैम ये जो ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हाँ बोलो ये जो ओप्स के कॉन्सेप्ट है वो पाइथन के टॉपिक है हाँ ओके तो अभी प्ले करके देखते हैं तो ये तुमने ब्लूप्रिंट क्रिएट कर ली है नाउ वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट
ओके। हेलो मैम, हेलो। हम्म। मैम इसमें अगर कलर ऐड करना हो तो कैसे करें? यहाँ पे आप बताओ कैसे करें? एनीवन? इफ आई वांट टू ऐड कलर इन दिस सेंटेंस, कैसे करेंगे वो? और एक होल्डर ऐड कर दो। द डॉग नेम इज डैश, द एज इज डैश, एंड द कलर इज डैश। वो डैश के लिए आई नीड टू ऐड अनदर वन, सेल्फ डॉट कलर। ओके। अभी आप एक काम करो, यू कीप दिस, यू क्रिएट वन क्लास विद इन इट एंड वन फंक्शन। कोई भी फंक्शन दे सकते हो, आप डॉग की जगह कुछ और भी डाल सकते हो। क्रिएट वन, आप एक क्रिएट करो। Done. Okay. Now let's see how we can create object. Screen is visible, right? यस मैम। Now let's create object. Okay. Now let's say I'm giving a name to my object, that is dog one. Okay.
Now how we will make sure that ये जो object हम create कर रहे हैं that is under this class. How to mention that? You need to give the name of your class. Okay. Now parenthesis. Now see here what I have mentioned that if you create any init method, the attributes you have under that, you have to mention those things while creating the object. जब आप object create कर रहे हो, you have to mention all those attribute names जो तुम्हारा init के अंदर है. तो अगर हम ये mention ना करके ये play करने की try करें, तो क्या होगा देखते हैं. It's giving us error. What it's saying? Dog.init missing. Three required positional argument. One is name, one is age, one is color is missing. तो ये आपको देना था, आपने नहीं दिया. So that's why it's giving us error. Okay. So what are the things we need to give? One is let's say Toffee. Okay. The name is Toffee. Let's say, and the next thing is age, which is let's say 3 years, and color is black. Okay. Now try to play. Okay. See, now it's working. Okay. ये हमारा object create हो गया. Now what next we need to do? Now you can call any of your function. You can call talk function. You can call print all attribute function. So let's say I'm calling talk function first. How to do that? What is your object name? Dog1. Dot dog, and your attribute name is talk. Okay. Parenthesis. Now this parenthesis is important. ये अगर आप नहीं दोगे तो ये play नहीं होगा. Okay. We are getting output. Next play करके देखते हैं. Dog1. Print all attribute. See, the dog name is Toffee and the age is 3 and the color is black. हम एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन सा? ये object creation. यस मैम तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं व्हेन आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट दिस इनिट मेथड विल कॉल इटसेल्फ और फॉर दिस फंक्शंस और जो अदर्स फंक्शन है इन लोगों को अगर आप कॉल करोगे तभी ये काम करेगा अगर आपने नहीं कॉल किया तो ये नहीं काम करेगा तो व्हाइल आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट आई ट्राई टू प्ले विदाउट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन तो अगर हम ये इन्फॉर्मेशन के अलावा ये प्ले करें तो इट्स गिविंग अस एरर राइट जो हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को चाहिए था हमने वो डाल दिया टॉफी नेम दे दिया एज 3 years दे दिया कलर ब्लैक दे दिया एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू प्ले फिर जब मैंने प्ले किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है डॉग1 वो क्रिएट करने के बाद आई ट्राई टू कॉल दिस फंक्शन व्हिच इज टॉक फंक्शन ये फंक्शन का नेम है टॉक तो आई ट्राई टू प्ले दिस इट्स वर्किंग आई ट्राई टू प्ले दिस अगेन ये भी मैंने कॉल किया डॉग1 लिख के फिर ये भी कॉल किया तो दिस इज आल्सो गिविंग अस हियर ओके मैम मेरे इसमें ये डॉग वन जो है ना प्ले नहीं हो रहा है गलती किए होंगे कुछ नेम डॉग इज नॉट डिफरेंट ऐसा है दिखाओ क्या किया प्रशांत आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे गलती खुद का लाइक हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर फॉल्ट्स या आप ठीक से जो मैंने लिखा है ना एकदम लाइन बाय लाइन देखो बिकॉज मैम मोस्ट सिर्फ ऑफ द टाइम समटाइम्स यू मिस इंडेंटेशन समटाइम्स यू स्टार्ट फ्रॉम लाइक आफ्टर 2-3 गैप देके आप शुरू करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए ही आपका प्ले नहीं होता है अब दिखाओ आपका कोड बिकॉज अभी तो एक कोड है ना इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तब तो और भी बहुत सारा कोड होगा तो यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स के जो डेफ आपने की है वो क्लास के अंदर है या नहीं तो इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट शेयर हाँ मैम शेयर किया अश्विनी सॉरी आई मिस योर टेक्स्ट ये पाइथन के अंदर ही है अश्विनी शिंदे आई मिस योर टेक्स्ट आया नहीं प्रशांत सॉरी मैम वो किरण राठौर सर को गया हम्म? वो किरण राठौर सर को गया आप शेयर कर रहे हो क्या हाँ मैम हाँ कर दिया मैम ओके आया नहीं है अभी तक अब इसके पहले का कोड दिखाओ इसके पहले आपने क्लास डिफाइन की है ना हाँ मैम वो वाला कोड दिखाओ हाँ गाइस आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करते तो लाइक बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता तो प्रश्न भी कितने सारे क्लियर हो रहे हैं
So what is the problem? कोई बोल सकता है क्या? Can anyone find out what is the problem? ये 4 में जो है you leave that. ऊपर का देखो. प्रशांत, can you understand what is the problem? No, ma'am. That's why I asked. आपके क्लास में डॉग डी कैपिटल है, यहाँ पे आपने स्मॉल डी डाला है, चलो तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डॉग के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि स्मॉल डी, स्मॉल ओ, स्मॉल जी में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई मैम क्लास इसमें है ही ऐसे नहीं. कुछ नहीं रहता क्या कि हम अगर कैपिटल डाले तो ऑटो क्योंकि पाइथन में तो स्मॉल यूज होता है ना, तो हम्म, अगर हम पाइथन में तो स्मॉल केस यूज होता है ना। नहीं, पाइथन आपने सीखा था ना फर्स्ट डे में कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो इसके लिए कैपिटल डी ओ जी एंड स्मॉल डी ओ जी आर टू डिफरेंट थिंग. ओके. मैम हेलो हम्म. मैम एरर आ रहा है हम्म. मेरे में भी मैम एरर आ रहा है मैं कोड कर रहा हूँ तो आपने भी किया दिखाओ. एक सेकंड मैम सेंड करता हूँ ओके. व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड उसका एक बड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रिएट की है. ठीक. द क्लास नेम इज बैंक अकाउंट. ओके. अंडरस्टैंड केयरफुली, ये आप एक टैब में खोल के रखना एंड एक न्यू टैब में ये सेम चीज. डोंट थिंक यार ये तो समझ में आ गया तो मुझे नहीं करना है. डोंट डू दैट. डू द सेम थिंग. पास में और एक नया टैब खोलो, एक नया नोटबुक खोलो, उसमें ये सेम चीज करो. डू इट बाय योरसेल्फ. ओके. देख देख के सेम चीजें लिखो, बट लिखो. तो द क्लास नेम इज बैंक अकाउंट. अभी कंस्ट्रक्टर जो है इनिट मेथड, उसके अंदर हमने क्या क्या एट्रीब्यूट्स ऐड की है. एक अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, द ब्रांच नेम एंड वन स्टैटिक दैट इज बैलेंस व्हिच इज 5000. अगर आपको ये बैलेंस यहाँ पे सेपरेट रखना है वो भी आप कर सकते हो. ओके. यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिखने से भी काम हो जाएगा. ओके. ओके. इसका क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं. ओके. बस. मैम सॉरी मैंने दूसरा भेज दिया मैम सॉरी अभी मैंने भेजा मैम ये आपके पास कहाँ से आया? मैम आपने अभी जो किया ना मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि जहाँ अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है ठीक है. भेजो. अभी भेजा मैम अभी भेजा वो स्क्रीनशॉट था ना फ्रंट में एक चीज देखो. हाउ टू अंडरस्टैंड. देखो, ये जो डेफ है, ये जो डेफ है, ये कौन से कलर में है? ब्लू में. राइट राहुल? ये ऊपर का जो डेफ है, ये आपका कलर चेंज ही नहीं हुआ, तो श्योरली यहाँ पे ही कुछ गलती है. तो आप नीचे भी अगर चेक करोगे कि ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे भी इट शोइंग कि ये लाइन में कुछ गलती है. राइट. नाउ द क्वेश्चन इज क्या गलती है. आपने डेफ के बाद कुछ स्पेस नहीं दिया, तो इसलिए इट्स काउंटिंग डेफ इन इट एज वन वर्ड. तो डेफ इन इट बोल के तो कुछ है नहीं, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. ऐसा समझ में. मैम डेफ के बाद एक स्पेस डालो, बिकॉज डेफ एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दीस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स. So def is the keyword. Def in it not. मैम हेलो मैम Yes, Prashant. मैम अभी मैंने जो आपको भेजा था डॉग का मैंने रीडर डाला था, तो वो मैंने क्लियर करके उसको स्मॉल केस में कर लिया, लेकिन अभी अगर मैं उस ब्रैकेट में कुछ डाल रहा हूँ ना जो आपने सेम डाला था, तो Hmm. वहाँ पे इधर आ रहा है कि डॉग टू ब्रैकेट्स टेक्स्ट नो आर्गुमेंट्स। Okay, जब मैं स्क्रीनशॉट लो पूरा स्क्रीन का, पूरा कोड लेके स्क्रीनशॉट लो. अच्छा, ये किसका था? राहुल का ना? हेलो हाँ. हाँ सेम इशू मैम मैंने शेयर किया आपको कोड हाँ, रुक जाओ, ये पहले क्लियर कर ले. तो कमिंग टू अनदर वन प्रॉब्लम, डेफ के बाद स्पेस डालो, फिर सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर लिखो. उसका प्रोडक्शन हो गया है, वो मुझे रिलीज करवाना है, ठीक है रिलीज प्रशांत. करने का राहुल. प्रशांत गो ऑन म्यूट. टॉक ठीक है, डेफ ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉग वन इक्वल टू डॉग, फिर ये 3 ठीक है ठीक है. ओके. तो आप सिर्फ डेफ के बाद में स्पेस डालो एंड सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर लिखो. ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व. नाउ कमिंग टू प्रज्वल. हेलो रुक जाओ. ओके Dog init self name age color self dot name self dot age self dot color def dog. Okay, dog name is dash dash self name self age self color. Okay, fine. Now dog one equal to dog three black. Okay. वो मैम क्लास ऑब्जेक्ट में प्रिंट ऑल एट्रीब्यूट्स के बाद में आप एम्प्टी ब्रेसेस डालो, ओके पेरेंथेसिस डालो. इज इट वर्किंग नाउ? नो मैम क्या दिखा रहा डॉक टेक्स्ट नो आर्गुमेंट डॉक पैरेंथेसिस ब्रैकेट टेक्स्ट नो आर्गुमेंट है? Am I missing something? Okay, got it. init में दो अंडरस्कोर होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, init अंडरस्कोर अंडरस्कोर. इनिट के बाद क्या पहले भी दो, बाद में भी दो. ओके हाँ आया मैम आया ओके ठीक है. ओके, व्हाट एल्स? क्या हेलो राहुल? यस मैम वो मैंने उधर किया है बट वो ब्लू हो गया बट मैम फिर भी एरर आ रहा है लाइन हाँ, 8 अभी में एरर आ रहा स्क्रीनशॉट भेजो, भेजो स्क्रीनशॉट. है जी मैम यस मैम हाँ, रुक जाओ.
राहुल, am I audible? यस मैम। हाँ, देखो वहाँ पे लिखा ही है ना नीचे, यस मैम। जहाँ पे एरर आया है, क्या लिखा है सिंटैक्स एरर में? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कोलोन, राइट? यस यस। कहाँ पे एक्सपेक्टेड है? वो भी एरो देके लिखा हुआ है। 8th लाइन राइट? उसका लाइन देखो ऊपर में, एक्सपेक्टेड के ऊपर क्या है? डेप डेप ओके ओके। टॉक टॉक के पहले आएगा मैम। टॉक के बाद में आएगा। ओके यहाँ पे नीचे आपने दी है, सेल्फ के बाद आपने दी है, ऊपर में मिस कर गए। ओके, तो ऊपर भी मैम सेल्फ के बाद देना है या टॉक के हाँ, बाद देना सेल्फ के बाद ही तो देना है। है? ओके। हुआ? नो मैम, फिर से आ रहा है एरर। टाइप एरर डॉग टॉक क्या नो। एरर दिखा रहा मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। है? आप सिंटैक्स एरर पढ़ना सीखो। ये अगर एक्सपेक्टेड कोलन लिखा हुआ है, कहाँ पे डालना है वो भी लिखा हुआ है। यस मैम, डाल दिया। अभी हुआ क्या? नहीं हुआ मैम, मैं वही स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। हाँ, वो क्या एरर दिखा रहा है वो भी शॉर्ट में लेना। यस मैम, लिया। सेंड किया। जी मैम, सेंड किया। सेंड किया मैम। ऑर्डर इज दैट डॉग वन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सॉरी। आप कोड भेजो पूरा, राहुल चैट में यस कॉपी मैम, करके। कोड भेजना। हाँ, कॉपी करके भेजो मुझे दोनों कोड, क्लास का भी और वो। ओके मैम, मुझे एक्सेल लॉग करना पड़ेगा। ओके मैम, मैं सेंड कर Now see, these are my attributes. Now here, this is my function. Okay. Now what I'm doing, if you deposit something, I will call this deposit function. Okay. Now this deposit will do what? आपका इनिशियल जो बैलेंस है उसके साथ ये जो नया अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, इट विल ऐड दैट. ओके. तो मान लो मेरा इनिशियल बैलेंस इज 5000. नाउ आई एम एडिंग 2000 एक्स्ट्रा. आई एम डिपॉजिटिंग 2000. so what I need to do, फर्स्ट इफ यू कॉल दिस, इट विल आस्क यू कि कितना अमाउंट आप डालना चाहते हो. मैंने लिख दिया 2000. तो वो करने के बाद व्हाट इट विल डू, जो आपका इनिशियल अमाउंट है उसके साथ जो नया बैलेंस है, वो बैलेंस के साथ ये नया वाला जो आपका अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा. सो 5000 प्लस 2000 हो जाएगा. ओके. प्लस इक्वल टू मीनिंग ये ऐड करके दैट विल बी योर न्यू बैलेंस. ओके. एंड देन इट विल प्रिंट कि आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका अमाउंट डिपॉजिटेड 2000 है, ये आपका मैसेज आ जाएगा, ये आपका प्रिंट हो जाएगा. दिस इज फॉर डिपॉजिट पार्ट. इफ यू विड्रॉल एनी अमाउंट, मान लो आपका 5000 है बैलेंस, ठीक है. इनिशियली जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम लिख रहे हो कि कितना बैलेंस है, तब आपने 5000 लिखा था, तो आपने अकाउंट खोलने के टाइम आपका बैलेंस था 5000. नाउ यू वांट टू विड्रॉ सम अमाउंट. तो अगर मान लो तुम्हारा 5000 है, तो इफ यू वांट टू विड्रॉ 3000, तो मुझे क्या करना है एज अ बैंक, मुझे पहले देखना है कि जो अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हो उतना अमाउंट आपके पास है या नहीं. अगर आपके पास है तो वेरी गुड, आप विड्रॉल कर लो. अगर नहीं है तो मुझे आपको भेजना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, राइट. अगर आप फोन पे करने के टाइम या एटीएम में जाके इफ यू वांट टू विथड्रॉ सम अमाउंट व्हिच इज नॉट देयर इन योर अकाउंट, तो वो दिखाते हैं ना ऊपर इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट. तो यहाँ पे भी सेम होगा. इफ यू मेंशन एंटर योर अमाउंट, ठीक है, इफ यू मेंशन कि मुझे 6000 उठाना है, तो व्हाट इट विल डू, इट विल चेक कि आपका बैलेंस is greater than or equal to the amount you have mentioned or not. तो मेरा अमाउंट मैंने मेंशन की है 6000 और आपके पास है 5000. तो 5000 is greater than or equal to 6000. No, right? 5000 is less. तो ये क्या होगा, ये एल्स पार्ट में आ जाएगा, नहीं ये दिखाएगा कि आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है. अगर ये ट्रू हो गया, मतलब आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा है आपके विड्रॉल अमाउंट से, तो क्या होगा, ये आपका बैलेंस से माइनस हो जाएगा उतना अमाउंट, एंड ये आपको दिखा देगा कि आपका अकाउंट नंबर ये है एंड यू हैव विड्रॉल दिस मच अमाउंट. एंड अगर आप चाहो तो वो आप करंट बैलेंस भी दिखा सकते हो, सेल्फ डॉट बैलेंस दिखा के आप वो भी दिखा सकते हो. एंड इफ यू वांट टू चेक योर बैलेंस स्टेटस, वो भी आप ये अकाउंट समरी को कॉल करके चेक कर सकते हो कि आपका नाम क्या है, का नंबर क्या है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, ये सब आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंट समरी. एनी क्वेश्चन एनीवन? ये आप अच्छे से ठंडे दिमाग से देखना. राहुल प्लीज शेयर आपका कोड शेयर कर दो. मैम शेयर किया, आया नहीं अभी तक, चैट में तो शो है। फिर से करो एक बार. डन। हो रहा है मैम शो। मेरा वो एरर देख रहा है.
हेलो मैम। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया ना? राहुल थोड़ा भेजो, अभी तक नहीं आया। मैम वो डॉग टेक्स नो आर्गुमेंट्स, इसके क्या होगा मैम? ये भेजा भी है। अब भी भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो। मैम स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है और मैं कोड भेज रहा हूँ, तो मैम आई थिंक सो आपके पास इधर तो दिख रहा जा रहा है बट उधर शो नहीं हो रहा है मैम। अब डॉक मत भेजो, ऐसे कॉपी करके पेस्ट करो। यस यस मैम, मैंने जो कोड है ना उसको सबको कॉपी किया, देन मैं चैट में जाके पेस्ट किया बट शो नहीं हो रहा है मैम। इधर से तो मैंने भेज दिया बट आपकी तरफ से शो नहीं हो रहा है। आप वो सॉरी किसके सॉरी, किरण किरण सर को जा रहा है, सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी वही मैम, मैं बोल रही हूँ, सॉरी वो एक बार सॉरी मैम। चेक करो किसके पास जा रहा है। मैम मेरा आ गया होगा मुझे। आ गया, मैम डबल राहुल का आ डबल गया। अंडरस्कोर नहीं है। देखो मैम मैंने भेज दिया। हाँ हाँ, आ गया। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। कॉपिंग योर कोड। हम्म, लास्ट डॉक, ठीक है। ओके, आपका भी इनिट में प्रॉब्लम है, 2 अंडरस्कोर डालना पड़ता है। नेम एज कलर, यहाँ पे स्मॉल सी और यहाँ पे कैपिटल सी। यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी डाला था आपने। टॉप प्रिंट डेफ प्रिंट ऑल एट्रीब्यूट्स, ओके। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट कलर, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट dog1 dog एट्रीब्यूट। यस मैम अभी शोर है। किसी और का प्रॉब्लम है? प्रशांत, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम आपको भेजा है। आगे पीछे का कुछ भेजो। ओके मैम। कोड है तो कोड भेज दो। मैम अगर डॉग के बाद अगर ब्रैकेट में मैं कुछ डालूँ ना, ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ू तो ओके हो रहा है। ब्रैकेट में अगर वो कुछ आप डालूँ नहीं तो छोड़ सकते ना, आपने तो इनिट मेथड डाला है तो आपको एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मिरर में तो वही बता रहा है ना कि वो ब्लैंक चाहिए। आपने कुछ गलती किया होगा, दैट्स व्हाई। ओके, क्लास डॉग। ओके, तुम्हारा इनिट कहाँ गया? हम्म, कौन सा? प्रशांत, वेयर इज योर इनिट? यहाँ पे तो आपने टॉप लिखी, इनिट लिखो यहाँ पे। मैं ये अब तक मैंने क्या सिखाया इनिट के बारे में? मेरे पास स्क्रीन पे आपका शो करिए ना, तो मैं वो देख के। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, only then you can write something within your parenthesis while creating the object, okay? ओके। यहाँ पे आपने एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर लिया ना, तो इसलिए यहाँ पे जब आप डाल रहे हो ये सोच रहा है कि आपने तो इनिट किया ही नहीं, तो ये क्या आपने डाला है ब्रैकेट के अंदर। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। एरर आ रहा है क्या? यस मैम। डेफ के बाद स्पेस डालो। हाँ, डाला? डेस्क के बाद स्पेस है मैम, हाँ, स्पेस डालो। यहाँ डाल दिया। डाल दिया, तो अभी ये जो डेफ आपने लिखा है ना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ। आपका इमेज दिख रहा है? जी हाँ। हाँ, तो यहाँ पे आपने जो डेफ है ना आपका, इसके बाद स्पेस डालो। ओके। फिर देखना कि डेफ ब्लू हो जाएगा। यस मैम। ब्लू ओके। होने के बाद भी ये जी। डेफ एंड ये डेफ हाँ। सेम तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले आपने स्पेस नहीं दिया है, इंडेंटेशन नहीं दिया है। तो जी। ये जो आपने लिखा है इसके ऊपर आपने क्लास क्रिएट की है? नो मैम, मैंने न्यू टैब खोल के न्यू ओपन किया। हाँ, तो ये तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर ये सारे डेफ, ये सारे फंक्शन एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके। तो फर्स्ट आपको क्लास क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर ये सारे होगा। तो सारे डेफ के आगे ये देखो, ये क्लास हमने क्रिएट की है। यस मैम।
उसके अंदर सारे ये सारे इसके अंदर है। ओके ओके मैम, ठीक है। मतलब न्यू टैब ओपन करना होगा तो सब क्लासिफिकेशन पहले करना होगा। हाँ, क्लास के अंदर आप ये क्रिएट कर रहे हो। विदाउट क्लास दीज थिंग्स आर नथिंग। ओके मैम। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ओके, तो मुझे पहले कल का जो था ये शेयर करना पड़ेगा। ओके, और एक ये मैं शेयर कर रही हूँ, बट इसमें बहुत सारी चीज है जो हमने अभी तक सीखा नहीं है। इज इनहेरिटेंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये हम सीख लेंगे। रिसीव्ड? Yes, ma'am. ओके, चलो, थैंक यू, बाय, Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट।